Hello students, class 9th Heron's formula, and we are in continuation of exercise 12.2 question number. Next is 6th question. Question is, an umbrella is made of stitching 10 triangular pieces of cloth of two different color. Each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? Question is that one umbrella is given and it has 10 triangular pieces. 10 triangular pieces. In what manner? Let us suppose this one is the first piece, then this one is the second piece, then this one is the third, then this one is fourth, and this one is, let us suppose, fifth. Okay, and so on. So this is the one umbrella, and each piece of this triangular having the measurement. This is 50, this is also 50, and this is 20, and next so on. So these 10 pieces are there out of 10, 5 are of one color and 5 of another color, and we have to find the total area. So first of all, the sides of triangular pieces are कितनी साइड है? One is 50, another is also 50, and another is also 20 centimeter. Okay, first 50, second is also 50, and third is 20 centimeter. So first of all, the semi perimeter S will be given by A plus B plus C by 2. So 50 plus 50 plus 20 divided by 2, that is 120 by 2, that is 60 centimeter. Now area of each triangular piece equals to the positive square root of S into S minus A, S minus B, S minus C यूनिट स्क्वायर. देखिए इधर क्या दे रखा आपने को, एक अम्ब्रेला है जिसकी किससे बना हुआ है? 10 ट्रायंगुलर पीसेस से, और ईच ट्रायंगुलर पीसेस की जो साइड है वो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. So to find the area of each triangular piece, first of all we will find S, that is semi-perimeter of that triangular piece. So sum of side divided by 2, so 50 plus 50 plus 20 divided by 2, that is 120 by 2, 60 centimeter. Then to find the area of each triangular piece, we will use Heron's formula. So Heron's formula is, we are regularly using in every question, so you have to write first formula, implies that area of triangular pieces will be each as 60 दे रखा, 60 into 60 minus 50, 60 minus 50 and 60 minus 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ तो अपन यूनिट स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि अपन फॉर्मूले में अपने को नहीं पता है कि क्या है. अब जब आप वैल्यूज पुटअप किए तो वैल्यूज किस में थी? साइड सेंटीमीटर में, तो अपन ने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो यूनिट स्क्वायर. अब देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटे. कैलकुलेट करने के लिए s की वैल्यू तो 60 है, 60 माइनस 50 10 है, ये भी आपका 10 है और ये आपका 20 हो गया. ओके, तो ये हो गया आपका टोटल 12,000 स्क्वायर सेंटीमीटर. इस 12,000 स्क्वायर सेंटीमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं बेटे? इसको अपन लिख सकते हैं 4,000 into 3,000. 4,000 into 3,000, that is स्क्वायर रूट निकालने के लिए 4,000 into 3, 4,000 into 3, that is 12,000 centimeter square. Okay, now 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा?
4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 6 into 2, that is 2000. So to find the square root of this 12,000 square, 1000 square, 6 2s are 12, 1 2 3 4 0 होना चाहिए, ये ऐसे होगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 into 6 into 2 6 2 12 और ये हो जाएगा 40। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 20,000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 200 into root 6 centimeter square. So this is the area of each triangular piece. Now how many total triangular pieces are there? 10 triangular pieces are there. Out of 5 are of one color and 5 are another color. So pause the video, note down. So first now we have to find area of each color pieces. So area of, now second step में क्या लिखेंगे, area of first 5 same color pieces, pieces, that will be equals to 5 into 200 root 6 centimeter square. So 200 into 5, that will be 1000 roots are 6 centimeter square. Similarly, second, another 5 are of another color. So area of second 5 another color pieces. कौन से pieces ये? Triangular pieces. So you can write triangular pieces. ये कितना होगा? ये भी उतना ही एरिया है, तो 5 into root 6 centimeter square। तो जो सेम नेक्स्ट 5 है, टोटल अम्ब्रेला में कितने पीस है? 10 पीस है, जिसमें से 5 पीसेज जो ट्रायंगुलर शेप के वो एक कलर के हैं और रिमेनिंग 5 है अनदर कलर के। एरिया तो दोनों का सेम होगा, लेकिन वी हैव टू शो डिफरेंटली कि जो पहले 5 कलर वाले ट्रायंगुलर पीसेज हैं उनका एरिया into 5 कर दूंगा, दूसरे भी क्या into 5। सो दिस विल बी 1000 root 6 centimeter square. So this was question number 6. Pause the video in order. Now next question. Next question is a kite in the shape of square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter, each to be made of 3 different sets as shown in the figure. How much paper of each set has been used in it? So a kite is in the shape of square. देखो काइट किस तरीके का दे रखा है अपने को, एक स्क्वायर शेप का काइट है। दिस इज द स्क्वायर शेप एंड दिस वन इज द डायगोनल ऑफ दिस फर्स्ट एंड दिस वन इज द सेकंड डायगोनल। आप देखिए इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट अपन क्या निकालेंगे कि a kite in the shape of square with diagonal 32 centimeter। 32 centimeter का मतलब ये भी आपका 32 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 32 सेंटीमीटर। ओके, सो फर्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड उसका जो बेस है एक आइसोसेलेस, इस काइट का जो बेस है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है जिसकी 8 सेंटीमीटर साइड है और जो 2 रिमेनिंग साइड है इक्वल, दैट इज 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक काइट है स्क्वायर शेप का जिसका डायगोनल कितना है 32। स्क्वायर शेप का तो दोनों डायगोनल स्क्वायर में सेम होते हैं, तो अगर फर्स्ट डायगोनल 32 तो सेकंड भी 32 होगा। और इसका बेस एक ट्रायंगल है। ये काइट किसके ऊपर बना हुआ है, एक ट्रायंगल के ऊपर। जो ट्रायंगल आइसोसेलेस है मतलब उसकी दो साइड बराबर, एक साइड 6 सेंटीमीटर है दूसरी 6
एंड थर्ड वन इज 8 सेंटीमीटर। ये दे रखा है कि बेस जो है ट्राइंगल का, जो आइसोसेलेस है उसका बेस 8 सेंटीमीटर और रिमेनिंग 6 का मतलब बाकी दोनों 6 की होगी। तो अपने को टोटल एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और ट्रायंगुलर का एरिया और दोनों का सम कर देंगे। दिस इज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। सो 1/2 इंटू 32 इंटू 32, डायगोनल तो 32 है, ठीक है। यहां से अपन क्या करेंगे, 16 बार कट जाएगा, 16 इंटू 32, तो इसका एरिया 16 2 जा, अगेन 32 का 2 कैरी 3, 16 3 जा 48 और 3 51, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया किसका आया आपका, स्क्वायर का। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका कोई नॉमेनक्लेचर दे दीजिए, इसको ए नाम दे दे, बी, ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be equals to positive square root of s into s minus a, s minus b, s minus c यूनिट स्क्वायर, क्योंकि रोल्स फॉर्मूला यूज लेंगे अपन। where s क्या है बेटे, s है 6 plus 6 plus 8 divided by 12 plus 20 by 2, that is 10 centimeter. Now implies that values put up कर, so area of triangle ABC, that is base of kite, so ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट, s की वैल्यू 10, 10 minus 6 into 10 minus 6 into 10 minus 8 centimeter square, 8 centimeter square. So this will be 10 into 10 minus 6, 4 into 4 into 2. आप देखिए इसको अपन क्या ले सकते हैं, 10 को 5 into 2 into ये वाला 2, ये 2 साथ में आ जाएगा, 4 into 4 पॉजिटिव स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 5 2 into 2, इसका स्क्वायर रूट तो 2 आ जाएगा, इसका 4 into 4 का कितना आ जाएगा 4, तो बाहर कितना आ गया आपका 2 into 4 root 5 centimeter square, so that is 8 root 5 centimeter square. This is the area of base of the triangle. ओके आप देखो इसका टोटल का, ये दो ट्राइंगल थे, एक देखो एक ट्राइंगल ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये, इन दोनों ट्राइंगल का तो मिलके स्क्वायर बन रहा है, तो इसका टोटल एरिया तो ये हो गया। नाउ टोटल एरिया, कितना होगा, टोटल एरिया विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर का एरिया प्लस ट्राइंगल, स्क्वायर का कितना है 512 प्लस ये हो गया आपका 8 root 5 centimeter square. So this is the area of this solid figure. Please pause the video, note down. Now question number 8. Next question is question number 8, and the question number 8 is a floral design on a floor is made up of 16 tiles. Okay, जैसा आपने को फिगर में दे रखा है, ऐसा डिजाइन अपन किस पे बना रहे हैं, फ्लोर के ऊपर। The sides of triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा per centimeter square. एक ऐसा डिजाइन बनाया फ्लोर पे देखिए थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में।
इस प्रकार के टोटल 16 फ्लोरल डिजाइन है और हर एक के जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स है, जैसे ये जो ट्राइंगल है लेट अस सपोज ऐसे जो ट्राइंगल है और ये वाला सेकंड ऐसे, ये जैसे थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है एंड दिस वन इज एट। अपन एक डिजाइन और बना सकते हैं, समझने के लिए बता रहा हूं कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है लेट अस सपोज इसका कोई नाम दे देते हैं ABC। इस ट्राइंगल की जो साइड है वो कितनी है, देखो ये 9 सेंटीमीटर हो गया लॉन्गेस्ट आपका, ये वाला 35 सेंटीमीटर हो गया और सेकंड स्मॉल लॉन्गेस्ट इज 28 सेंटीमीटर हो गया। ओके, सो अपन क्या करेंगे, ऐसी टोटल 16 डिजाइन है तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे अपन, पहले एक ट्रायंगुलर फ्लिप का एरिया निकाल लें। सो सबसे पहले द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर क्या क्या है, 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 9 प्लस 28 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2। सो S विल बी देखिए कितना होगा, 9 and 8 17 and 17 and 5 22 carry 2 2 2 4 and 3 7 upon 2 that is 36 सेंटीमीटर। ये आपका सेमी पेरीमीटर है। नाउ एरिया ऑफ ईच टाइल्स, नाउ एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर शेप tile will be equals to positive square root of s into s minus a, s minus b और s minus c यूनिट स्क्वायर। ये हर एक ट्रायंगुलर शेप टाइल्स का एरिया है। आप देखिए यहाँ पर s कितना है अपना, s अपना 36 सेंटीमीटर है तो s की वैल्यू पुट अप करेंगे 36 into 36 माइनस कितना लिखेंगे 9 into 36 माइनस 28 into 36 minus 35 centimeter square. So this will be 36 into 36 minus 9 27, 36 minus 28 8 और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए इसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालने के लिए अपन थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर दें। देखो 36 का तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना 6 स्क्वायर रूट, 27 को इसको अपन ऐसे लिख देते हैं 6 स्क्वायर इंटू 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 9, तो 9 को क्या 3 का स्क्वायर का मतलब 9 इंटू 3 और 8 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 2। ओके, आप देखो इसका रूट 6 स्क्वायर का तो रूट आ गया 6, 3 स्क्वायर का आ गया 3 और इस 4 का आ जाएगा 2 और अंदर कितना बचेगा 3 2 जा 6 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36। सो ये एरिया आ रहा आपका फाइनली इज इक्वल्स टू 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस वन इज द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर शेप ऑफ टाइल्स है। अब इस ये टोटल टाइल्स कितनी है, ऐसी 16 टाइल्स है तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं यहां पे, नाउ एरिया ऑफ सच 16 ट्रायंगुलर शेप टाइल्स, TST का मतलब ट्रायंगुलर शेप टाइल्स विल बी इक्वल्स टू 16 इनटू कितना आ जाएगा 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो इनकी कॉस्ट निकालनी है अपने को। कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है इसका जो अपने टाइल्स लगाई है उसके ऊपर जो कलरिंग कॉस्ट है या पॉलिशिंग कॉस्ट है। नाउ पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ कितना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रुपीज 1/2। 50 पैसे को मतलब 1/2 रुपए लिख सकते हैं।
सो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट विल बी कितनी होगी? देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की इतनी, तो 1/2 इंटू 16 इंटू 36√6 ये रुपीज हो जाएगा। ओके, ये यहां से कितने बार? 8 बार कर जाएगा, 8 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? 8 6 48 का 8 कैरी 4, 8 3 24 और 4 28√6 rupees. This will be the rupees. Okay, so this is the answer. Please pause the video and note down. Now last question. Last question is that a field is in the shape of a trapezium. A field is in the shape of a trapezium. Trapezium का मतलब quadrilateral in which one pair of opposite side are parallel. So let us suppose the trapezium is ABCD. ये trapezium shape का field है जिसकी जो the parallel sides are 25 सेंटीमीटर and 10 सेंटीमीटर। देखिए ये आपकी 10 सेंटीमीटर है और ये जो टोटल है वो 25 सेंटीमीटर है। ओके, the non parallel sides are 13 सेंटीमीटर and 14 सेंटीमीटर। जो non parallel का मतलब ये दोनों साइड है, पैरेलल नहीं है, ये non parallel जो है वो 13 and 14 सेंटीमीटर है। The non parallel find the area of field। तो अपन क्या करेंगे कि इस ट्रेपेजियम को हम पैरेललोग्राम और ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे कि लेट अस सपोज ये जो साइड है इसी के पैरेलल साइड अपन यहां से निकाल लेते हैं। तो ये ABCD जो ट्रेपेजियम था, ABCD में से AECD एक पैरेललोग्राम हो गया और रिमेनिंग ट्रायंगल है। अब अगर देखो AD और EC अगर पैरेलल तो ये भी 13 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, और ये अगर CD 10 सेंटीमीटर है तो AE भी 10 सेंटीमीटर, ये टोटल 25, तो बचेगी कितनी? ये 15 सेंटीमीटर होगी। अब देखो एरिया किसके बराबर हो गया? टोटल ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ओके, सो टोटल एरिया इस तरीके से निकालेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। उसके पहले स्टेटमेंट लिख लें कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड will be equals to area of parallelogram। नॉमेनक्लेचर दे दीजिए, फिगर में दिया तो AECD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC। ये दो ज्योमेट्रिकल फिगर where area of triangle EBC is equals to positive square root s minus a, s minus b, s minus c unit square। जहां पर s कितना है? 13 plus 14 plus 15 by 2, तो 7 and 5, 12 का 2 carry 1, 3 and 1 4, 42/2, that is 21 सेंटीमीटर s आया। तो एरिया कितना आ जाएगा आपका? एरिया विल बी positive square root of 21 into 21 minus of 13 into 21 minus 14 into 21 minus of 15 centimeter square। Okay, so the positive square root ये हो गया आपका 21 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 1 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 into 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करें इजीली तो यहाँ हो जाएगा, देखो एरिया विल बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 21 को क्या लिख सकते हैं? 7 into 3, 7 into 3, 4 into 2 into
ये जो 7 था ये 7 स्क्वायर हो जाएगा और 6 को लिख दूंगा मैं 3 इंटू 2, तो ये 2 इस 2 के साथ, ये 3 इस 3 के साथ, तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, मतलब 7 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो फाइनली आया 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 21, तो 42, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी हाइट चाहिए अपने को, हाइट। सो अगर ट्रायंगल का बेस जो है, इस ट्रायंगल का बेस अगर मैं 15 लेता हूं और इसकी हाइट अगर h है, तो हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, देखो यहां से निकालेंगे अपन सीधा कि नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC will be equals to 1/2 into base into height unit square। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो अपन ने निकाल लिया, 84 is equals to 1/2 into base कितना 15 into height अपने को निकालनी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते 84 into 2 upon 15 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू हाइट। ये आपकी हाइट आई किसकी, ट्रेपेजियम की, सॉरी हाँ, इस ट्रेपेजियम की जो हाइट है वही आपकी पैरेललोग्राम की, वी कैन से इन सैंपल। सो नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट यूनिट स्क्वायर। तो बेस देखो पैरेललोग्राम का 10 है, इनटू हाइट किसके, डायरेक्टली यहां लिख देते 84 इंटू 2 अपॉन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी हाइट देखो ये 15 से कट जाएगा, 10 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है, और ये 3 से कट जाएगा 84, 3 2 जा 6, 2 बचा और 8 3 जा 24, ये बच गया। तो ये देखो 2 इंटू 28 2 जा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया विल बी इक्वल्स टू 112 सेंटीमीटर तो पैरेललोग्राम का है और 84 आपका ट्रायंगल का, तो दिस विल बी द टोटल एरिया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दैट।